same angles. A line make same angle theta with each of the x and y axis. With each of x and a line makes same angle theta with each of x and z axis. ठीक है, आगे दिया है if the angle beta which it makes with y axis is equal is such that sin square beta is equal to 3 times of sin square theta, then cos square theta is equal to what? Then cos square theta is equal to, this is the question. ठीक है, 2004 का क्वेश्चन है ये. A line makes same angle theta with each of x and z axis. A line makes same angle theta with each of x and z axis. ठीक है, if the angle beta which it makes with y axis, तो obviously यहाँ पे डायरेक्शन एंगल्स का बात किया है. Alpha is the angle with x axis, beta is the angle with y axis, and gamma is an angle with z axis. But question में क्या बोला है? A line makes same angle theta with each of x and z axis. मतलब अल्फा और गामा इन दोनों का वैल्यू थीटा है. A line makes same angle theta with each of x and z axis. x के साथ जो एंगल बनाते हैं उसको अल्फा बोलते हैं और z के साथ जो एंगल बनाते हैं उसको गामा बोलते हैं. बट इसमें क्या बोला है कि अल्फा और गामा दोनों का वैल्यू क्या रहेगा? थीटा रहेगा. अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू थीटा. ये क्लियर है? ये हम सबने पढ़ा अच्छे से, इसमें डाउट ही नहीं होना चाहिए किसी को. ठीक है, फिर उन्होंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहेगा एल्स cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1. हम सबने पढ़ा अच्छे से, वही यूज करेंगे यहाँ पे. नाउ we will use the relation. The relation is cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. तो in place of cos square alpha क्या आएगा? In place of cos square alpha आपको मिलेगा cos square theta. In place of cos square beta क्या आएगा? That is the question. In place of cos square beta क्या आएगा? In place of cos square beta हम लिख सकते हैं 1 minus sin square beta. आइडेंटिटी 1 minus sin square beta. और cos square gamma कितना आएगा? cos square gamma भी cos square theta ही रहेगा because gamma and alpha are equal, which is equal to 1. इसको उन्होंने ब्रेक किया तो कितना आएगा? cos square theta plus cos square theta is 2 cos square theta. 1 get cancelled, minus sin square beta is equal to 0. ऐसा कुछ आएगा. 2 cos square theta is equal to sin square beta is equal to sin square beta. यहाँ पे मिलेगा आपको 2 cos square theta is equal to sin square beta. बट आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि sin square beta का वैल्यू 3 sin square theta है. This is equal to 2 cos square theta. In place of sin square beta हम लोग लिख सकते हैं 3 sin square theta. 3 sin square theta. So therefore 2 cos square theta is equal to 3 will be as it is. Sin square theta के लिए क्या आएगा? 1 minus cos square theta. 1 minus cos square theta. So therefore 2 cos square theta is equal to 3 1s are 3 minus 3 cos square theta. ऐसा कुछ आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे लेके आगे कितना हो गया ये पूरा? 5 cos square theta is equal to 3. So finally आंसर कितना आएगा अपना? cos square theta is equal to 3/5. This is an answer. ये पूछा था find the value of cos square theta. The value of cos square theta is 3/5. ये JEE का क्वेश्चन है गाइस, 3D चैप्टर का. ठीक है, डायरेक्शन एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज हुआ इसमें, अल्फा बीटा एंड गामा. ठीक है, अल्फा बीटा एंड गामा. क्लियर? श्योर, समझ में आया सब? 2004 का क्वेश्चन है. मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ सब पास्ट ईयर रिलेटेड क्वेश्चंस है. ठीक है,
सो आपका एक बंच बन जाएगा प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट। कोई भी चीज नहीं समझ में आ रहा है प्लीज चैट पे बता देना कि ये चीज नहीं समझा, इसको रिपीट कीजिए प्लीज, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस को अच्छे से गैलरी बना के रखो, सब काम में आने वाला, ठीक है। हटा रहे हैं इसको, विल मूव टू द नेक्स्ट सम। 2004 का क्वेश्चन था, विल सी द नेक्स्ट सम। एक्चुअल में ना पहले ना 2010 तक ना बहुत क्वेश्चन और भी रिलेटेड सिलेबस के ऊपर आते थे, स्पीयर्स के ऊपर क्वेश्चन होता था, सेंटर ऑफ द स्पीयर, रेडियस ऑफ द स्पीयर, बट एक्चुअल में अभी हम लोग को वो कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हम लोग वो क्वेश्चंस नहीं करेंगे। विल मूव टू द नेक्स्ट सम नाउ। द नेक्स्ट सम इज सम नंबर सेकंड। द क्वेश्चन इज द इंटर if the straight line if the straight lines lines है आपका x is equal to 1 plus s, y is equal to minus 3 minus lambda s, और एंड ये पहला लाइन हो गया, एंड z is equal to 1 plus lambda s, z is equal to 1 plus lambda s। तो x is equal to 1 plus s, y is equal to minus 3 minus lambda s, z is equal to 1 plus lambda s, and the second line है आपका x is equal to t, y is equal to 1 plus t, y is equal to 1 plus t, and z is equal to 2 minus t, and z is equal to 2 minus t. These are the lines. X is equal to t, y is equal to 1 plus t, and z is equal to 2 minus t with parameters s and t. With parameters s and t. With parameters s and t respectively are coplanar. Are coplanar. Both of these lines are coplanar. So you have to get the value of lambda there. Lambda बताओ कितना रहेगा? Lambda is equal to question mark. If both of these lines are coplanar, what will be the value of lambda? ठीक है, what will be the value of lambda? हम लोग ने अभी लास्ट लेक्चर में एमसीक्यूज में लिखा था, when two lines are coplanar, a2 minus a1, b1 b2 is equal to 0. याद है आपको डिटरमिनेंट फॉर्म? या तो अगर इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में चाहिए कार्टेशियन फॉर्म में, तो डिटरमिनेंट ऑफ x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 is equal to 0. हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था ये, ठीक है। तो हम लोग को पता है पहले हम लोग को लाइन को ना स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो फर्स्ट लाइन है उसको हम लोग लिखेंगे x minus 1 is equal to s, दूसरा लिखेंगे y plus 3 is equal to minus lambda s, और तीसरा लिखेंगे हम लोग z minus 1 is equal to lambda s, ठीक है। तो therefore यहाँ से क्या मिलेगा, x minus 1 by 1 which is equal to y plus 3 upon minus lambda which is equal to z minus 1 upon lambda, and all these three are equal to s. So x minus 1 by 1 y plus 3 upon minus lambda और तीसरा z minus 1 upon lambda is equal to s, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 2 क्या रहेगा, x is equal to t, y is equal to 1 plus t, and z is equal to 2 minus t. सॉल्व करते हैं, इसको कितना मिलेगा, ये x अपॉन 1 is equal to t हो जाएगा, ठीक है। y minus 1 equal to t को मैं लिखता हूँ y minus 1 is equal to t, y is equal to 1 plus t क्या हो जाएगा, y is equal to 1 plus t हो जाएगा, y minus 1 is equal to t, और ये कितना हो जाएगा, z minus 2 is equal to माइनस, यहाँ पे आ गया minus 1, इधर 1, इधर पे भी 1, ठीक है। क्लियर है इतना? तो आपको ये तीनों के तीन t के वैल्यू मिल गया, तो कितना मिलेगा, ये x by 1 is equal to y minus 1 by 1 is equal to z minus 2 by minus 1, this is equal to t. This is equation number 2. So line 1 और line 2 दोनों मेरे पास रेडी है। both the lines are coplanar है। अगर line 1 और line 2 दोनों coplanar है तो इनका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0। हम सबको पता है कि डिटरमिनेंट का फॉर्मूला क्या है इसका, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, a1 b1 c1, and then a2 b2 c2
इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला, ठीक है। इसको पुट करते हैं और एक्सपांड करते हैं डिटरमिनेंट। Therefore x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा? यहाँ पे x2 है ही नहीं, यहाँ पे x1 कितना है? 1 है, तो 0 माइनस 1, ठीक है। y2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? y2 आपको पता है लाइन का फॉर्मेट, x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1, x माइनस x2 अपॉन a2 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2। सबने पढ़ा रहेगा ये बोर्ड्स में, ठीक है। तो x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा? 0 माइनस 1, y2 माइनस y1 1 माइनस 3, 1 माइनस ऑफ माइनस 3, z2 माइनस z1 2 माइनस 1, ठीक है। a1 b1 c1 a1 1 b1 माइनस लैम्बडा c1 लैम्बडा, और a2 b2 c2 कितना आएगा? 1 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमको लैम्बडा फाइंड करना है, एक्सपांड करते हैं इसको, ठीक है। तो पहला कितना आएगा आपका? माइनस 1 टाइम्स ऑफ लैम्बडा माइनस लैम्बडा गया, पहला कंप्लीट हो गया 0। ये कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस ऑफ माइनस 3 4, 4 टाइम्स ऑफ माइनस 1 माइनस लैम्बडा, और तीसरा कितना हो जाएगा? 1 टाइम्स ऑफ 1 प्लस लैम्बडा विच इज इक्वल टू 0। तो लैम्बडा लैम्बडा गया 0 हो गया, ये कितना हो जाएगा? माइनस 4 लैम्बडा, और हो जाएगा 1 प्लस लैम्बडा विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो माइनस 4 प्लस 1 इज माइनस 3, minus 4 lambda plus lambda is minus 3 lambda which is equal to 0. So we are getting 3 lambda is equal to minus 3, and finally we can say that lambda is minus 1. So the answer for this lambda is minus 1. So if both of these lines are coplanar, we are going to get the value of lambda as minus 1. देख लो अच्छे से, समझ में आया? तो x minus 1 upon 1 is equal to y plus 3 upon minus lambda is equal to z minus 1 upon lambda which is equal to s, and x minus 0 upon 1 is equal to y minus 1 upon क्लियर है? देख लो, समझ में आ गया रहेगा। लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस 1। If both of these lines are coplanar, we are going to get the value of lambda as minus 1. Understood everyone? Question number second, got it? Clear everyone? समझा? Yes or no? Please confirm, समझ में आया कि नहीं? Yes sir. बोर्ड्स के समझा, ये एंट्रेंस में आ गया गलती से, ठीक है। आगे चलते हैं, ये सब पेपर के पास्ट के क्वेश्चन रिपीटेड है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं इसके। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 2020 और 2019 के क्वेश्चन करेंगे इसके चैप्टर के। तो अगला क्वेश्चन है अपना सम नंबर 3, ध्यान देना क्लास। क्वेश्चन है, let L be the line of intersection of the plane. Let L be the line of intersection of planes. Let L be the line of intersection of planes. Let L be the line of intersection of planes. Plane है पहला 2x plus 3y plus z is equal to 1, and दूसरा x plus 3y plus 2z is equal to 2. 2x plus 3y plus z is equal to 1, and x plus 3y plus 2z is equal to 2. These are the two lines. इन दोनों lines का intersection जो है, इन दोनों planes का जो intersection है वो line है, ठीक है। If line L makes an angle alpha with positive x-axis. If line L makes an angle alpha with positive x-axis, then what is the value of cos alpha? Then cos alpha is what? So line L, let L be the line of intersection of planes, plane 1 and plane 2. If L makes an angle alpha with positive x-axis, then cos alpha कितना होगा? ये चाहिए हमको, cos alpha कितना होगा, ठीक है। So line L makes an angle alpha with positive x-axis, makes an angle alpha with positive x-axis, ठीक है।
So what will be the value of cos alpha? What will be the value of cos alpha? तो line L with the line of intersection of planes. So दो प्लेन का line of intersection कौन है? दो planes है 2x plus 3y plus z is equal to 1 and x plus 3y plus 2z is equal to 2. हाँ ये दो planes है, ठीक है? इन दोनों planes को एक line intersect करता है. तो अगर वो line x axis के साथ अल्फा का एंगल बना रहा है, तो cos अल्फा कितना होगा ये पूछा है, ठीक है? तो गाइस सबसे पहले हमारा काम है कि यहाँ पे हम लोग लाइन L निकालें. लाइन L निकालना पड़ेगा हमें. अगर एक बार हमने लाइन L निकाल लिया तो हमारा काम हो जाएगा. तो वी हैव टू गेट लाइन L. सो गाइस थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना अच्छे से कोशिश करना. 2x plus 3y plus z is equal to 1 का डायरेक्शन रेशियो क्या है? इसका डायरेक्शन रेशियो क्या रहेगा? इसका डायरेक्शन रेशियो रहेगा 2 3 1. ठीक है? सेम वे x plus 3y plus 2z is equal to 2 का डायरेक्शन रेशियो क्या रहेगा? इसका डायरेक्शन रेशियो रहेगा 1 3 2. तो दोनों ही प्लेन का डायरेक्शन रेशियो है मेरे पास. प्लेन 1 प्लेन 2 दोनों का डायरेक्शन रेशियो है मेरे पास. सो लाइन L जो रहेगा ये आपका नॉर्मल वेक्टर है प्लेन 1 का और ये आपका नॉर्मल वेक्टर है प्लेन 2 का. तो थोड़ा सोचना पड़ेगा. ये देखो ये प्लेन 1 है मान लो और मान लो कि ये प्लेन 2 है. ठीक है? ये इनका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है. ठीक है? तो प्लेन 1 का नॉर्मल वेक्टर ये हो गया, प्लेन 2 का नॉर्मल वेक्टर ये हो गया. तो इसका जो परपेंडिकुलर निकलेगा वो आपकी लाइन को पैरेलल होगा कि नहीं होगा? क्लियर समझना चाहिए ये. इसका जो देखो ये n1 वेक्टर है, ये n2 वेक्टर है. इसका जो परपेंडिकुलर निकलेगा वो लाइन L को पैरेलल होगा. तो अगर मेरे को लाइन L चाहिए L बार, तो मेरे को L बार कैसे मिलेगा? n1 क्रॉस n2. तो ये जो लाइन होगा ये क्या होगा आपका? n1 बार क्रॉस n2 बार पैरेलल टू लाइन n1 क्रॉस n2. सो n1 वेक्टर कितना है मेरा? n1 वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप. ये हो गया मेरा n1 वेक्टर. और n2 वेक्टर कितना है मेरे पास? n2 वेक्टर है i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप. ठीक है? सो l बार कितना हो जाएगा? i कैप j कैप k कैप. n कितना हो जाएगा? n1 2 3 1 और n2 कितना हो जाएगा? 1 3 2. तो यहाँ से हम लोग पहले L बार निकालते हैं. तो L बार कितना आएगा? सॉल्व करो इसको. 6 minus 3 3i कैप 4 minus 1 3. तो j का नेगेटिव साइन तो माइनस j कैप और 6 minus 3 प्लस 3 के कैप. तो L बार आ गया. नाउ L जो है वो x एक्सिस के साथ अल्फा का एंगल बना रहा है. तो L x एक्सिस के साथ अल्फा का एंगल बना रहा है. तो सिर्फ a1 a2 आएगा, b1 b2 0 हो जाएगा. बिकॉज x एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? x एक्सिस का जो डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ x एक्सिस आर क्या रहेगा? ये 1 0 0. ठीक है? 1 0 0. डायरेक्शन रेशियोज ऑफ x एक्सिस आर 1 0 0. तो हम लोग का जो फॉर्मूला बनेगा वो किसमें बनेगा? L में और x एक्सिस में. तो फॉर्मूला क्या आएगा? a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2. सो a1 a2 b1 b2 तो 0 हो जाएगा, c1 c2 भी 0 हो जाएगा. तो a1 a2 कितना आ गया? 3 1s are 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ हाँ अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर. तो a1 स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 9 प्लस 9 प्लस 9. ठीक है? और ये कितना हो जाएगा? b2 स्क्वायर तो 1 हो जाएगा. तो आपको आंसर कितना आ रहा है? 3 अपॉन रूट ऑफ 27. रूट ऑफ 27 को आप क्या लिख सकते हो? 3 रूट 3. सो आंसर आएगा इसका 1 बाय रूट 3. So cos theta is equal to 1 by root 3. Theta is equal to cos inverse of 1 by root 3. ठीक है? हमको cos theta ही पूछा था. तो cos theta is 1 by root 3. देख के लो सब समझ में आएगा. एवरीवन क्लियर है? इंपॉर्टेंट सम है, ध्यान देना अच्छे से. जस्ट गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट दीजिए.
स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, नेटवर्क चेंज करना पड़ रहा था वाईफाई का। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ठीक है, क्लियर है ये? नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हटा रहा हूं इसको मैं। आई होप कि ये सबको समझ में आया, क्लियर है ना? ये जो लाइन रहेगा उसका पैरेलल वेक्टर कौन रहेगा? n1 क्रॉस n2। तो लाइन l बार निकाला हमने, l बार n1 क्रॉस n2 से, ठीक है। फिर l बार को x एक्सिस के साथ तो कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। इफ अ लाइन मेक्स एंगल अल्फा विद x एक्सिस, तो एक ही चीज का फर्क आएगा सिर्फ यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला में, cos अल्फा हो जाएगा, cos अल्फा इज इक्वल टू 1/√3। क्लियर है? सम आप लोग कंफर्म करो प्लीज, समझ में आया तो। एवरीवन अंडरस्टूड ना? श्योर गॉट इट एवरीवन? सम समझा? कुछ हाँ तो आया ना तो बोलो, ठीक है। अखिल, अमन, अंजलि, अश्लेषा, गॉट इट? ये n1 क्रॉस n2 वाला इंपॉर्टेंट था क्या? बहुत, ये बहुत जो को नहीं समझ में आता है। n1 क्रॉस n2 विल बी पैरेलल टू द लाइन l, विल बी पैरेलल टू द लाइन l। तो अगर लाइन l फाइंड करना है तो n1 क्रॉस n2 का डायरेक्शन रेशियो ले लो, तो 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। हटा रहा हूं मैं, आगे मूव करते हैं, ठीक है। This is the next sum number 69। मेरे में 69 है यार, चलो फोर्थ सम, ठीक है। मेरे में ऐसा है तो गाइस 2011 का क्वेश्चन है, लास्ट लेक्चर में कराया था ये सेम टाइप का सम। इफ द एंगल बिटवीन द लाइन, इफ द एंगल बिटवीन द लाइन, लाइन है आपका x इज इक्वल टू y माइनस 1/2 इज इक्वल टू z माइनस 3 upon lambda। If the angle between the line x is equal to y minus 1/2 is equal to z minus 3 upon lambda, and the plane का इक्वेशन है x plus 2y plus 3z is equal to 4, ठीक है। If the angle between the line and the plane is cos inverse of root of 5/14, is cos inverse of root of 5/14, then what will be the value of lambda? ये लास्ट लेक्चर में कराया था, ये आपसे चाहिए मुझे, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका इसका 3/2, सेकेंड ऑप्शन है इसका आपका 2/5, आपको दे रहा है इसलिए ऑप्शन लिख रहा हूँ, और थर्ड ऑप्शन है इसका 5/3, और फोर्थ ऑप्शन है इसका 2/3। स्टार्ट सॉल्विंग फास्ट। A 3/2, B 2/5, C 5/3, D 2/3। स्टार्ट सॉल्विंग इट फटाफट। आप लोगों को लास्ट में पढ़ा था मैंने, एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन, the formula is sin theta is equal to b bar dot n bar upon mod of b bar into mod of n bar। Start solving, get me the value of lambda, निकालो फटाफट। Angle between a line and a plane, sin theta is equal to b bar dot n bar upon mod of b bar into mod of n bar, upon mod of b bar into mod of n bar। करो अच्छे से सॉल्व इसको। The angle between the line and a plane is cos inverse of root of 5/14, then what will be the value of lambda? इसका आंसर आना चाहिए, लास्ट में कराया मैंने। एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन, फॉर्मूला क्या है? sin थीटा इज इक्वल टू b बार डॉट n बार अपॉन मॉड ऑफ b बार इनटू मॉड ऑफ n बार। b बार क्या होता है? पैरेलल वेक्टर ऑफ द लाइन, n बार क्या होता है? नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन। यहां से b बार n बार निकालोगे तो आपका काम हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा सम है ये। गेट द आंसर।
डन, आया सबको ये आंसर बताओ चैट बॉक्स पे यार, इजी सम्स के लिए भी टाइम मत लगाओ, ठीक है। सॉल्व किया इसको, देखो सबसे पहले जो लाइन है x is equal to y minus 1 upon 2 is equal to z minus 3 upon lambda, x नीचे 1 डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको पैरेलल वेक्टर क्या मिलेगा, v बार कितना मिलेगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस लैम्बडा k कैप। a1 abc जो होता है वो डायरेक्शन रेशो देगा आपको, ठीक है। चेक करते हैं राइट है क्या, हम चेक करते हैं 2/3 राइट है। सो b बार इज i प्लस 2j प्लस लैम्बडा k। फिर उसके बाद आपका प्लेन कितना है, प्लेन है आपके पास x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से नॉर्मल वेक्टर कितना मिलेगा, ए बी सी कितना है 1 2 3। तो नॉर्मल वेक्टर मिलेगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, b बार मिल गया, n बार मिल गया। ना फॉर्मूला क्या है, एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन का फॉर्मूला है sin थीटा is equal to b bar dot n bar upon mod of b bar into mod of n bar, ये फॉर्मूला आपका। sin थीटा is equal to b dot n upon mod of b into mod of n। तो हमको sin थीटा दिया ही नहीं यार, हमको तो cos थीटा दिया है, तो हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा sin में, ठीक है। तो वो बाद में कर लेते हैं, फिलहाल हम लोग यहाँ पे सम सॉल्व करते हैं अच्छे से। cos इनवर्स ऑफ √15 √5/14, ठीक है। तो sin थीटा निकालते हैं यहाँ से, तो sin थीटा कितना मिलेगा, b bar dot n bar कितना हो जाएगा, 1 1 1 4 and this is 3 lambda। So A1 A2 will be 1, B1 B2 will be 4 and C1 C2 will be 3 lambda। Mod of B will be 1 plus 4 plus lambda square, 5 plus lambda square कितना हो जाएगा ये, 5 plus lambda square, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 1 plus 4 plus 9 √14, √14 स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड कर लेते हैं। इसको स्क्वायर करके क्या हो जाएगा, ये sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस 3 लैम्बडा का होल स्क्वायर, और नीचे कितना आएगा आपके पास 14 टाइम्स ऑफ 5 प्लस लैम्बडा स्क्वायर। इसके लिए ना हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले ना इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसका एंगल कितना दिया है, इसका एंगल दिया है cos इनवर्स √5/14। तो कैन वी से दैट थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ √5/14। ये समझ में आ गया, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, थीटा इज इक्वल टू, या सिंपल हम लोग ऐसा बोले cos थीटा इज इक्वल टू √5/14, चलेगा। तो अगर स्क्वायर किया तो कितना आएगा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5/14। तो cos स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5/14, चलेगा। यहाँ से sin स्क्वायर थीटा कितना मिलेगा, therefore we are going to get sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 5/14, राइट। ये उधर 1 माइनस 5/14 कितना आएगा, 1 माइनस 5/14 इज 9/14, कितना हो जाएगा 9/14। तो 1 माइनस 5/14, तो 1 माइनस 5/14 इज 14 माइनस 5/14 9/14। इन प्लेस ऑफ sin स्क्वायर थीटा में क्या लिख सकता हूँ, 9/14 लिख सकता हूँ। इधर मैंने 9/14 लिख दिया, इधर पे लिख दिया मैंने 5 प्लस 3 लैम्बडा का होल स्क्वायर, और इधर रख दिया मैंने 14 एज इट इज 5 प्लस लैम्बडा स्क्वायर, ठीक है। 14 और 14 कैंसिल हो गया आपका, क्या बचेगा इधर, 9 टाइम्स ऑफ 5 प्लस लैम्बडा स्क्वायर विल बी एज इट इज 9 टाइम्स ऑफ 5 प्लस लैम्बडा स्क्वायर, और a प्लस बी द होल स्क्वायर कितना आएगा, 25 प्लस 30 लैम्बडा प्लस 9 लैम्बडा स्क्वायर, स्टैंडर्ड एसपीएच को, ठीक है। कितना मिल रहा है आपको सॉल्व करके, 9 5 45, 45 प्लस 9 लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 30 लैम्बडा प्लस 9 लैम्बडा स्क्वायर। इसको स्टैंडर्डाइज किया अच्छे से, 9 लैम्बडा स्क्वायर 9 लैम्बडा स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है सीधा सीधा दोनों बाजू से, क्या बच रहा है आपके पास 45 इक्वल टू 25, तो 30 लैम्बडा इज इक्वल टू 20, 30 lambda is equal to 20, so we are getting lambda is equal to 2/3. So the value of lambda is 2/3. Option D is the correct answer. ठीक है, सिंपल सा समझता है, पेपर में पूछा गया जेडब्ल्यू में, एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्लियर किया था कि जो भी सिनॉप्सिस मैंने लिखा के दिया उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है,
उतना पढ़ लिया तो बहुत है. तो आंसर इज लैम्बडा इज इक्वल टू 2/3. लैम्बडा इज इक्वल टू 2/3. टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट. लैम्बडा इज इक्वल टू 2/3. डन. श्योर एवरीवन अंडरस्टूड. सो आंसर इज लैम्बडा इज इक्वल टू 2/3. यहाँ से हम लोग को sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना पड़ा पहले. तो sin स्क्वायर थीटा कितना आएगा आपका 9/14. sin स्क्वायर थीटा कितना आएगा आपका 9/14. अंडरस्टूड. हटा रहा हूँ इसको मैं. ठीक है. डन. इजी सम है, बस आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन अच्छे से आना चाहिए. We'll see the next sum now. हाँ, थोड़ा अलग टाइप का सम देखते हैं. फिफ्थ सम. Let the line x minus 2/3 is equal to y minus 1 upon minus 5 is equal to z plus 2/2. Z plus 2/2. Let the line x minus 2/3 is equal to y minus 1 by minus 5 is equal to z plus 2/2 lies in the plane. Lies in the plane. Plane क्या है? x plus 3y minus alpha z plus beta is equal to 0. This is a question. Plus beta is equal to 0. Then आपको बताना है कि अल्फा कॉमा बीटा क्या होगा. Then अल्फा कॉमा बीटा is equals to alpha comma beta is equals to, the first option is 6 comma minus 17. The second option is minus 6 comma 7. The third option is 5 comma minus 15. 5 comma minus 15, and the last option is minus 5 comma 15. चलो ट्राई करो अच्छे से. देखो मैं आपको एक शॉर्टकट बता के जाता हूँ, उसी हिसाब से ट्राई करोगे. करना क्या है, लाइन से ना पॉइंट निकालो. को पॉइंट बताया था मैंने, x1 plus a लैम्बडा, y1 plus b लैम्बडा, z1 plus c लैम्बडा. वो पॉइंट प्लेन पे लाई करता है, प्लेन को सेटिस्फाई करेगा. स्टार्ट करो चलो फटाफट. गेट द आंसर. Let the line x minus 2/3 is equal to y minus 1 by minus 5. क्या आ रहा है? रैशनल नंबर आ रहा है. रैशनल नंबर आ रहा है तो मतलब कुछ ऑप्शन दिया ना मैंने, 6 minus 17, minus 6 comma 7, 5 minus 15 और minus 5 comma 15.
चेक करते हैं कैसे होगा सॉल्व। तो पॉइंट तो इसमें लाई कर रहा है, तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा ना, इक्वेशन में पुट करके चेक करने का, अल्फा बीटा मिलेगा नहीं शायद, मेरे को लगता है। देखते हैं। सो x minus 2/3 is equal to y minus 1/-5 is equal to z plus 2/2, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, लेट द लाइन x minus 2/3 is equal to एक बना, अच्छा लाइट है। ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करेंगे देखो ना, इस पे पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, इस पे पॉइंट का फॉर्मूला है x1 plus a लैम्बडा, ठीक है। ये जो क्लियरली हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं अगर, तो हमको ये पता है कि ये लाइन इस प्लेन पे लाई करता है। तो अगर ये लाइन इस प्लेन पे लाई करता है तो जो पॉइंट 2, 1 और -2 है वो भी प्लेन पे लाई करेगा। क्लियर है ना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो अगर ये प्लेन है और ये लाइन इसमें लाई करता है, तो लाइन पे एक पॉइंट है, वो पॉइंट क्या था, वो पॉइंट है आपका 2, 1 और -2, ये भी इसी प्लेन में लाई करेगा, ठीक है। 2, 1, -2 भी प्लेन में लाई करेगा, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा तो किसको सेटिस्फाई करेगा, विल सेटिस्फाइज, इसको सेटिस्फाई करेगा ये x plus 3y माइनस अल्फा z प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करेगा। ये वैल्यू पुट करो, कितना हो जाएगा ये 2 plus 3 माइनस ऑफ -2 अल्फा, कितना हो जाएगा +2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आंसर आएगा देयरफॉर 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 1। अब शायद इसमें वैल्यू पुट करके आना चाहिए आंसर, ऑप्शन पुट करके 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5 पुट करो ना, 2 अल्फा 2 6, ऑप्शन ए क्लियरली देखो, 2 6 are 12, 12 minus 17 minus 5, ये भी राइट आ रहा है, ठीक है। ये देखो -6, 2 6 are 12, -6 -12, -12 भी तो नहीं हो रहा है, तो 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5, ठीक है। ये अपना ऑप्शन आ रहा है। 2 5 are 10, 10 minus 15 में -5 आ रहा है, 2 into -5 -10, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से कुछ दिख रहा है मेरे को। 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5, ये अपना इक्वेशन है, 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5। तो एक काम करते हैं ना, इधर से ना थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे, तो जो प्लेन का नॉर्मल है वो लाइन के पैरेलल वेक्टर को परपेंडिकुलर होगा, n बार इज परपेंडिकुलर टू b बार, n बार इज परपेंडिकुलर टू b बार, n बार इज परपेंडिकुलर टू b बार। देखते हैं यहाँ से कुछ बनता है क्या। वी कैन से दैट आल्सो normal of plane, also normal of plane is perpendicular to parallel vector of line, is perpendicular to parallel vector of line, is also perpendicular to parallel vector of line, ठीक है। तो नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन क्या है, n बार, n बार कितना है आपका, डायरेक्टली मैं सीधा लिखता हूँ, n बार का डायरेक्शन रेशियो क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ n बार r क्या रहेगा, 1 3 माइनस अल्फा, ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ n बार है, ठीक है। और प्लेन का डायरेक्शन, पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ v बार r क्या रहेगा, 3 माइनस 5 and 2,
अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 0 होगा. So 1 into 3 will be 3. 3 into minus 5 is minus 15 and this is minus 2 lambda is equal to 0. यहाँ से आपको मिलेगा अल्फा इज इक्वल टू 6. तो अल्फा का वैल्यू 6 डालो, 2 6 आर, क्योंकि इस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट आएंगे ना, तो 2 6 आर 12. तो बीटा इज इक्वल टू -5 -12. तो आंसर आएगा ए 6, -17. देख लो अच्छे से, ये राइट है ना मेरा कि रॉन्ग है? माइनस, सॉरी यार थोड़ा सा गलती हो गया, -12. तो अल्फा -6 आएगा, सॉरी 2 into -6. 2 into -6 -12 plus 12. Option B is the correct answer. -6,7. So अल्फा अगर -6 आया तो ऑब्वियसली बीटा 7 आएगा. पुट करके देख लो चाहिए तो अल्फा कितना है? -6 -12, वहां पे है +12, तो बीटा इज इक्वल टू 7. So अल्फा -6 बीटा 7, अल्फा -6 बीटा 7. होप यू अंडरस्टूड दिस. ठीक है, अल्फा -6 बीटा 7. क्लियर? तो लोग बोलो समझ में आया? समझे? तो अलग टाइप का समझा, बट आई होप कि क्लियर हुआ लोगों को. प्लीज कंफर्म समझा सबको? एवरीवन अंडरस्टूड? यस सर. यस सर. तो यहाँ से ना बहुत, ये लाइन है ना, 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5 लाइन है. लाइन पे इनफिनिट पॉइंट्स होते हैं, तो सब पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा था. ए बी सी सेटिस्फाई कर रहा था डी को छोड़ के. तो इसलिए हम लोग कंफ्यूज हो गए, तो हम लोग को दूसरा कॉन्सेप्ट भी लेना पड़ा कि नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल वेक्टर ऑफ द लाइन. तो वहां से अल्फा मिल गया. अल्फा कितना मिला? -6. अल्फा पुट किया तो बीटा मिलेगा 7. ठीक है, सब सिंपल कॉन्सेप्ट के ऊपर ही समझे. हटा रहे हैं इसको, नेक्स्ट सम पे चलते हैं. मैं सम्स आप लोगों को स्टार्टिंग में इसलिए देता हूं ट्राई करने के लिए कि देखो आपको खुद को आता है क्या, क्योंकि पेपर में भी आप ऐसे ही सॉल्व करने वाले क्वेश्चन देख के खुद से स्टार्ट करोगे. ठीक है, तो विल मूव टू द नेक्स्ट सम. ध्यान देना अच्छे से. इजी सम दे रहा हूं, दिखाया आपको ये. डिस्टेंस between two parallel planes. Distance between two parallel planes. Distance between two parallel planes. पहला है 2x plus y plus 2z is equal to 8. and दूसरा है 4x plus 2y plus 4z plus 5 is equal to 0 is. Give a try. 2013 का क्वेश्चन है. पहला ऑप्शन आएगा इसका 3/2, दूसरा ऑप्शन आएगा इसका 5/2, तीसरा ऑप्शन आएगा इसका 7/2 and the fourth option will be 9/2. ट्राई करो. 3/2, 5/2, 7/2, 9/2. फटाफट 1 मिनट आपके पास. डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स फॉर्मूला लिखा के दिया है, चेक कर लो सिनॉप्सिस में. सबसे पहला काम क्या करना होगा मालूम है आपको? दोनों ही इक्वेशन का डायरेक्शन इसको सेम करना पड़ेगा. तो अगर ये 2x plus y plus 2z is equal to 8 है ना, तो इसका ABC सेम होना चाहिए. तो 2x plus y plus 2z is equal to 8. ये प्लेन 1 हो गया. और प्लेन 2 क्या हो गया? 4x plus 2y plus 4z. ठीक है, इज इक्वल टू -5. ठीक है, अब ये देखो हम लोगों ने डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस पढ़ा था, c1 - c2 by root of a² plus b². वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी है.
d1 माइनस d2 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, बट d1 d2 कैसे मिलेगा? a1x b1y c1z कट होना चाहिए। अगर दोनों लाइंस पैरेलल तो उनके डायरेक्शन रेशियो सेम होने चाहिए। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? 4x प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 16। अभी तीनों का डायरेक्शन रेशियो सेम हो गया, तो फॉर्मूला क्या आएगा? डिस्टेंस का, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला है मॉड ऑफ d1 माइनस d2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका। तो d1 माइनस d2 कितना आएगा? d1 16, d2 माइनस 5 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। 4 स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16, 2 स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4, और फिर से 4 स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16। ऐसा कुछ आएगा। तो 16, 20, 36, तो आपको कितना मिल रहा है ओवरऑल? 21/6, और 21/6 कितना होगा आपका? 7/2। तो द आंसर इज ऑप्शन सी, 7/2। अमन राइट था आपका। द आंसर इज 7/2। सम नंबर 6, द आंसर इज 7/2। क्लियर? अंडरस्टूड? श्योर? समझा रहेगा सबको अच्छे से? ठीक है, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये इजी सम था, ये भी बोर्ड, ये भी जेडब्ल्यू में आ चुका है। ऐसे एक्चुअल में वेक्टर्स और 3D के क्वेश्चंस इजी लेवल के होते हैं, ज्यादा हार्ड तो होते नहीं है, सॉल्वेबल होते हैं सबके सब, ज्यादा अभी आपने देखा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सम नंबर 7। द इमेज ऑफ द लाइन, द इमेज ऑफ द लाइन, लाइन है आपका x माइनस 1/3 इज इक्वल टू y माइनस 3/1 इज इक्वल टू z माइनस 4/-5 in the plane, in the plane 2x minus y plus z plus 3 is equal to 0 is the line। ऐसा क्वेश्चन पूछा है, इस लाइन का इमेज चाहिए सर। इस बार भी, हाँ बोलो सर ये वाला क्वेश्चन इस बार भी आया था चाहिए। देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। मैंने अभी तक ना 2020 और 29 का क्वेश्चन बहुत पहले पढ़ाया था, वो देखा नहीं है, तो देख के मेरे को भी आइडिया मिलेगा शायद। तो हम लोग को नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे लास्ट ईयर के क्वेश्चंस कैसे हैं, ठीक है। द इमेज या करंट ईयर के क्वेश्चंस कैसे हैं। द इमेज ऑफ द लाइन, ये लाइन का इस प्लेन में क्या इमेज होगा, ये क्वेश्चन करना हम लोग को, ठीक है। ये तो कोशिश करो, ट्राई करो अच्छे से। देखो आप लोग को आ रहे हैं, ये लाइन का इस प्लेन में क्या इमेज होगा। ठीक है, तो मैं आपको ना सबसे पहले इमेज का फॉर्मूला बताता हूँ। गाइस स्ट्रेट लाइन में लिखा था मैंने, इमेज का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे देखो। 3D में इमेज का फॉर्मूला क्या है, एक कोऑर्डिनेट बढ़ जाता है तो फॉर्मूला बन जाएगा x माइनस x1/a इज इक्वल टू y माइनस y1/b इज इक्वल टू z माइनस z1/c इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ ax प्लस by प्लस cz प्लस d डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका x माइनस x1/a इज इक्वल टू y माइनस y1/b इज इक्वल टू z माइनस z1/c इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो लाइन से आपको क्या मिलेगा, x1 y1 z1 मिलेगा, ठीक है। तो x1 कितना मिलेगा आपको 1, y1 कितना मिलेगा आपको 3 और z1 कितना मिलेगा आपको 4। और ये जो ABC है क्या है, ये ABC क्या है, ये बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको। तो ये ABC आपका नॉर्मल वेक्टर है, क्या है ये, नॉर्मल वेक्टर है। तो नॉर्मल वेक्टर में A कितना मिलेगा, नॉर्मल वेक्टर का A कितना रहेगा, A विल बी 2
b will be -1 and c will be 1. So 2 -1 1, ठीक है। अभी वैल्यू पुट करते हैं। तो x1 y1 z1 ऐसा कुछ है, देखो ये प्लेन है, ये लाइन है मान लो, ठीक है। द इमेज ऑफ द लाइन इन द प्लेन। सर डायरेक्शन रेशियोज प्लेन का है, क्या बोलो, डायरेक्शन रेशियोज प्लेन का है। हाँ प्लेन का डायरेक्शन रेशियो रहेगा ना, प्लेन में हमने निकाला ना, तो प्लेन हाँ का डायरेक्शन रेशियो रहेगा, ठीक है। प्लेन में निकाला तो प्लेन का डायरेक्शन रेशियो रहेगा। देखो जब आप लाइन पे निकालते हो, पॉइंट से लाइन पे निकालते हो तो हम लोग इसका डायरेक्शन रेशियो लेते हैं ना, ए बी सी। अभी आप प्लेन में निकालो ना, तो प्लेन का डायरेक्शन रेशियो लोगे ना, समझ में आया? ए बी सी क्लियर है? हाँ तो अगर ये सर। लाइन है तो इस लाइन का डायरेक्शन, इस लाइन का इमेज चाहिए, तो ये इसका इमेज मान लेते हैं हम लोग। इस लाइन का इमेज, पॉइंट का इमेज नहीं चाहिए, लाइन का इमेज चाहिए, ऐसा कुछ है। तो डायरेक्शन ऑफ ए बी सी आएगा, तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। तो ए बी सी मैंने लिख के दिया, देखो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ प्लेन है वो। तो वैल्यू पुट करो, क्या हो जाएगा, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c which is equal to -2 times of a x1। पुट करो इसमें x1, 2 1s are 2, b y1 minus 3 z1 कितना आएगा 4 plus 3 upon a square plus b square plus c square। a square will be 4, b square will be 1, c square will be 1, ठीक है। यहाँ से आपको वैल्यू कितना मिल रहा है, अच्छा अच्छे से सॉल्व किया तो इधर से आपको मिल रहा है x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 7 9 6, 6/6 कैंसिल, तो -2 बचेगा सिर्फ। सो x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू -2, इधर से y माइनस 3 अपॉन -1 इज इक्वल टू -2 and z minus 4 upon 1 is equal to -2। क्लियर है? तो सॉल्व करो कितना मिलेगा, x is equal to -4 plus 1 -3, y is equal to 2 plus 3 5 and z is equal to -2 plus 4 is 2। तो x -3, y 5 और z 2। तो अगर कोई लाइन देखो पॉइंट मिल गया हमको, अगर कोई लाइन इसको पैरेलल है तो उसका डायरेक्शन तो सेम ही रहेगा ना। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड लाइन इज, पॉइंट चेंज होगा सिर्फ, बाकी आपका पैरेलल वेक्टर तो सेम ही रहेगा। तो आंसर क्या आएगा, x माइनस ऑफ माइनस विल बी x प्लस 3। सो x प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू y माइनस 1। तो y माइनस 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन माइनस 5। दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन। तो x प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन माइनस 5। दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन। आई होप यू गॉट इट। इसका पैरेलल वेक्टर सेम रहेगा ना, इमेज है तो बोलो। सर पैरेलल वेक्टर का वो डायरेक्शन उल्टा नहीं हो जाएगा, माइनस नहीं आ जाएगा? देखो पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन सेम ही रहेगा ना, इमेज है तो, पॉइंट नहीं है इमेज है, तो इसका डायरेक्शन सेम ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। तो लाइन का डायरेक्शन तो एक ही रहता है ना, इस Yes, लाइन sir, का sir. लाइन, तो उसका डायरेक्शन तो सेम ही रहेगा। सो 3 1 माइनस 1, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो है ना, वो पॉइंट नहीं है। क्लियर है? इमेज उल्टा नहीं होगा, रिफ्लेक्शन नहीं है, वो इमेज है, ठीक है, समझा? हाँ सर समझा। ठीक है, तो अच्छे से देख लो, ये सब सम्स आपके पेपर में आ चुके हैं। आप बता रहे हो कि ऐसा सेम क्वेश्चन इस साल के पेपर में आया, तो समझ सकते हो आप कितना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से एक चीज और क्लियर होता है कि पास्ट ईयर के क्वेश्चन से ही क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। तो जितना अच्छे से आप पास्ट ईयर के क्वेश्चंस कवर कर लोगे फ्रॉम 2005 टू 2020, तो हर एक टॉपिक का 10-10 15-15 क्वेश्चन आपका आराम से पास्ट ईयर का कवर हो जाएगा। तो वहीं से 1-2 क्वेश्चन पेपर में बनेंगे। देखो 25 क्वेश्चन ही होते हैं, कहाँ से डालेंगे ये लोग, कुछ ना कुछ कितना रिपीट करेंगे, ऑब्वियसली सब कॉन्सेप्ट रिपीट हो चुका है पेपर में। तो अगर हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर लिए, जेडब्ल्यू का बात कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर हम लोगों ने अच्छे से सॉल्व कर लिए, तो वही कॉन्सेप्ट हम लोग हमारे पेपर में भी यूज कर सकते हैं। और आपको एक कॉन्फिडेंस अलग ही मिलता है अगर आपको पास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं, तो वही कॉन्फिडेंस देगा आपको। बाकी आप या तो फिर कोई रेफरेंस बुक को पूरा अच्छे से सॉल्व करो। दो चीज हो सकता है, या तो लास्ट के 15 साल के क्वेश्चंस कवर कर लो, या तो कोई रेफरेंस बुक को A to Z पूरा कवर कर लो। अरिहंत हो गया या सिंगेज हो गया, और उसमें बहुत ज्यादा सिलेबस है और मेरे को लगता नहीं एंड टाइम पे वो प्रेफरेबल है। सो बेटर है कि आप लास्ट के 15 साल के क्वेश्चंस कवर करो, जो चैप्टर्स आपको इजी लगते हैं वो चैप्टर्स के, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ सबको। ये मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो हम लोग 2020 और 2019 के क्वेश्चंस को कवर करेंगे और देखेंगे कैसे क्वेश्चन 3D ज्योमेट्री से वहां पे पूछे जाते हैं। और भी 10-12 क्वेश्चन मेरे पास हैं, वो भी मैं आपको अच्छे से सॉल्व